Hello and welcome to this class of political science, and today we are going to discuss about one of the important thinkers of Western political thought, and you can see in the board also it is Niccolo di Bernardo di Machiavelli, or हम इसे basically we usually call him as only Machiavelli. So today we are going to talk about him. First of all, what we will do, we will try to I will try to give you the basic understanding of his thought, and here I am going to introduce Machiavelli. About the Machiavelli, about the Machiavelli is that he personifies the transformation from medieval to modern era. Basically Machiavelli एक ऐसा थिंकर है जिसे हम ये बोल सकते हैं कि he is basically a bridge between the medieval period and the modern period. So और जो modern times में बहुत सारे ऐसे concepts भी हैं like state, जो कि मैकियावेली ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको explain किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको बताने की कोशिश किया है. Besides, जब हम मैकियावेली की बात करें, we should always remember that he lived during the period of Renaissance. I hope कि और ये जो ये word है Renaissance, we will try to understand it what Renaissance is. Renaissance basically in simple language it means rebirth. Okay, so rebirth means कि एक ऐसा Renaissance एक ऐसा बदलाव था जिसने यूरोप में मिडिवल और मॉडर्न टाइम में, जैसे हमने बताया ब्रिज का टाइम है ये, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया. और मैं आई वांट टू सजेस्ट to all of you, to all the students who are watching this, कि ये जो ये word है रिनेसा, प्लीज गूगल इट एंड और जो भी आपके पास सोर्स है उससे ये पढ़ने की कोशिश करो कि ये जो वर्ड है रिनेसा, इसका मतलब क्या है एंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट. बिसाइड्स दिस इज द एज ऑफ न्यू साइंस, the age of the Renaissance. You might have heard about Galileo, you might have heard about Gutenberg. Galileo, he discovered about the geography and the outer space. Besides this, we see in the age of the Renaissance the coming of the printing press and so many other things. Besides this, the thoughts of the age of the Renaissance was the revolt against the traditionalism and the church. एक बहुत ही important point है. Basically जो जिस टाइम पे मैकियावेली का जो टाइम है, that is around during the 14th and the 15th century, उस टाइम पे जो चर्च है वो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था. जैसे कि आपको पता भी होगा कि गैलीलियो ही स्पोक अगेंस्ट द चर्च एंड ही वाज हैंग्ड टू डेथ. एंड सो दिस शोज कि कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है चर्च का. एंड ही वाज द वन ऑफ दोज हु strongly revolted against the traditionalism and the church. Besides this, Machiavelli was the one who basically discarded the divine law like divine theory of the state, जिसमें बोलता था that the king जो है that is being sent by the God, and he is basically the representative of the God on earth. And Machiavelli was the one who discarded this, जिसने ये बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, this is something wrong. And after this, in this you can also see that we can see that he followed inductive and the historical methods. All the political thinkers, you might have studied other political thinkers also. All the political thinkers, they have their methodology of giving their thought. जो Machiavelli का था, it was inductive. Even you have studied about Aristotle also. He was also having the inductive approach or inductive method. But Plato, जो आपने सबसे पहले शायद थिंकर पढ़ा होगा, तो that he was having the deductive approach. So what this inductive approach is, basically inductive approach is from particular to general. Means when we talk about the inductive approach, it means that we talk about a particular aspect, okay, और देन वी मेक ए जनरल स्टेटमेंट. क्योंकि जैसे आपने देखा होगा रिसर्चेज होती हैं, तो वो एक केस स्टडी होता है. तो उस केस स्टडी में क्या होता है कि उस केस स्टडी से वो पूरे का पूरा एक थ्योरी बिल्डिंग की कोशिश करते हैं. ओके, और ही आल्सो अडॉप्टेड द हिस्टोरिकल मेथड्स कि जो पास्ट इवेंट्स हैं जो कि कुछ चीजें हो गई हैं, टू लर्न फ्रॉम देम एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
आगे क्या हो सकता है, मीन्स समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड्स. बिसाइड्स दिस अबाउट द while introducing the Machiavelli, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ही emphasized on material motives. और ये मटेरियल मोटिव्स क्या है, बेसिकली जो मैकेवली है, ही इज नोन एज ए प्रैक्टिकल थिंकर. उसने जो भी अपने थॉट्स दिए हैं, जैसे भी उसने अपने थॉट्स दिए हैं, ही ट्राई टू एक्सप्लेन that a human being and especially a ruler, he needs to be very practical in his approach. और ये जो प्रैक्टिकलिटी की हम बात कर रहे हैं, इवन इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो, his views are very much, you can say, that are based on the practical things, और जिसे हम even we call it as a realistic approach also, and you can call him as a classical realist also. Besides this, or now we will earlier we talked about we try to introduce Machiavelli. हमने Machiavelli को introduce किया. Now now we will talk about Renaissance and its impact on Machiavelli. जैसे हमने पहले भी बात किया the importance of the Renaissance, और again I will suggest all of you कि Renaissance एक ऐसा वर्ड है, Renaissance try to read about and learn about more and more about Renaissance if you want and if you are interested to acquire more knowledge. Okay. Basically Renaissance, now again it's a French word which means the rebirth, and basically what it means, what it actually tries to say, क्या ये बोलना चाहता है, it says a newly found enthusiasm for education, classical literature and arts. Actually में जो ये Renaissance है, ये एक ऐसा टाइम है जिसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया पूरे बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और आई विल से इन वर्ल्ड थिंकिंग. एक बहुत बड़ा बदलाव था फ्रॉम द मिडिवल टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स. और इसमें क्या था कि एक न्यूली फॉर्म इंथुजियाज्म फॉर एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट्स. बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हुई, बहुत सारी ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे वर्ल्ड में एक रिफॉर्मेशन आई. और बहुत जगहों पे रिनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, इसको बहुत जगहों पे इस्तेमाल कहा जाता है कि रिनेसांस इज बेसिकली द रिफॉर्मेशन. और अगेन देन इट आल्सो लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेक्युलरिस्ट मूवमेंट एट्रिब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. जैसे हमने पहले भी बात किया कि ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स चर्च जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था. और यू कैन ये बोल सकते हैं कि रिलीजन जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, हर एक चीज को रेगुलेट करने के लिए, हर एक चीज को चलाने के लिए. तो ये जो रिनेसा का टाइम था, इट सॉ द सेक्युलरिस्ट मूवमेंट, और जिसमें आपने देखा होगा कि इवन इन द क्रिश्चियंस आल्सो वी सी द कमिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. और उसका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जाता है, श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, द इन्वेंटिंग ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस. जस्ट इमेजिन कि आज के टाइम में अगर हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस ना हो या हमारे पास प्रिंटिंग के लिए कुछ ना हो, तो किस तरीके से हमारी जो पूरी नॉलेज है वो कहाँ की कहाँ कितना बदलाव आ सकता है अगर हमारे पास कोई किताब ही ना हो. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, द इन्वेंशन द प्रिंटिंग प्रेस. बिसाइड्स दिस मैकियावेली क्वेश्चन द पॉपुलर सेंटिमेंट इन रिगार्ड टू गवर्नमेंट एंड ह्यूमन नेचर, जो कि हम आगे भी बात करेंगे कि मैकियावेली ने बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है, his you can say his thought is based on basically what the about how the humans are, basically जो humans है वो किस तरीके से हैं. और besides this उसने he also talked about the government कि किस तरीके से जो एक रूलर है उसे किस तरीके से रूल करना है, जो कि हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से एक रूलर को रूल करना है और उस रूलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके व्हाट ही हैज टू डू, व्हाट ए रूलर हैज नॉट टू डू, वो सभी चीजें मैकियावेली ने इलेबोरेटली बात किया है. बिसाइड्स दिस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ही व्यूड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मोस्ट रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कि उसने वर्ल्ड को देखा है एज द वर्ल्ड इट इज फ्रॉम ए वेरी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि अगर आई थिंक इफ यू हैव स्टडीड इन द इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, जो हमें वी हैव द रियलिस्ट अप्रोच.
सो अगर हम उस रियलिस्ट अप्रोच की अगर हम एक आप बोल सकते हो कि एक बैकग्राउंड में जाए, तो वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल्सो हैज सम एलिमेंट फ्रॉम द मैकियावेली ऑल्सो, बिकॉज ही सॉ द वर्ल्ड फ्रॉम अ वेरी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव. नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकियावेलीज व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर. कि जो मैकियावेली है उसने ह्यूमंस को कैसे अंडरस्टैंड किया. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैकियावेली ने जो ह्यूमन का जो नेचर है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और उसने ये भी बोला है कि ह्यूमंस के जितने भी एक्शंस हैं, आइदर दे आर पॉलिटिकल एक्शंस, इकोनॉमिक एक्शंस, दे हैव लॉट टू डू अबाउट देयर बेसिक नेचर. नाउ what he actually says that the humans are selfish, wicked, unscrupulous, antisocial and opportunists. Besides, he said that people are not by nature community oriented but highly self-centric. So अगर हम इसके views को understand करने की कोशिश करें, he is trying to say that he has basically negative thoughts about the human nature. कि जो human nature है वो एक्चुअली में सेल्फिश है. ओके, इट्स ए विक्ड, सेल्फिश एंड अपॉर्चुनिस्ट. एंड इसके साथ साथ इसने ये बोला कि मैन लव्स हिज प्रॉपर्टी मोर देन इट्स किड्स एंड किन्स. मींस कि जो एक ह्यूमन है उसको अपनी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा प्यार है. ओके, बिसाइड्स ही सेज दैट मैन, और इसके साथ साथ उसने एक और चीज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि humans tends to glorify past, decry present and hope for a better future. Means आपने might have observed that even sometimes some people ये बोलते हैं कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा था, पास्ट में ऐसा होता था, पास्ट में वैसा होता था. So that's what Machiavelli is trying to say, that they try to glorify the past. चाहे जैसा मर्जी पास्ट हो, पास्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश किया जाता है, और प्रेजेंट जैसा भी हो उसको डिक्राई मीन्स उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखने, मतलब बताने की कोशिश करता है कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था. एंड फाइनली दे ट्राई टू होप फॉर ए बेटर फ्यूचर. और ये वो कोशिश करते हैं कि, और ये समझते हैं कि जो उनका फ्यूचर होगा वो बेटर होगा. एंड इसी के साथ साथ जब वो ह्यूमन नेचर की बात कर रहे होते हैं, तो ही इज ट्राइंग टू से दैट मैकियावेली सेज दैट द ह्यूमंस हैव लव फॉर पावर, रेपुटेशन and there is a tendency to dominate the others. Okay, तो यहाँ पे you can see a pattern in his thinking that he is basically, why we call him also a realist thinker, and you can see from here also that he is trying to give more importance to the practicalities. Means that the humans have the love for the power, reputation, and everyone having, because of that power instinct, they wants to dominate the others. Okay, so this is how he tried to explain the human nature. Okay, after this we are going to talk about Machiavelli's views on morality and religion. Machiavelli, about his views, Machiavelli attempted formal separation between politics and morality. जैसे हमने पहले भी बात किया कि जो मैकियावेली है उसके जो व्यूज हैं रिलीजन के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर, जैसे कि हमने आपको बताया कि ही इज वन ऑफ दोज जिसने रिलीजन को और ये कहता है कि चर्च को बड़े स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था. सो ही हैज अ वेरी क्लियर व्यूज अबाउट ऑन मोरालिटी एंड रिलीजन. ही ट्राइज टू ट्राई टू सेपरेट पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, जो कि ये बोलता था कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी का कोई रोल नहीं है. okay? And besides, he tried to advocate the use of immoral means like fraud, forgery, violence, etc. by the prince. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि when he is trying to talk about morality and religion, इसने यहाँ पे ये कोशिश किया है बोलने का कि जो मोरालिटी है और जो ये रिलीजन है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है. ओके, लेकिन जब प्रिंस की बात आती है और जब रूलर की बात आती है, he knows no morality or no religion. लेकिन उसने ये भी बोला है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए रिलीजन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो दैट्स व्हाई he said that individuals to act in upright manner according to the moral standards of the time and the society,
Besides, he was एंटी चर्च, एंटी क्लर्जी, बट नॉट एंटी रिलीजन. वो चर्च के अगेंस्ट था, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन. वाई? बिकॉज ही न्यू दैट religion is an important institution that can control the public at large. इसके अलावा he tried to cultivate the belief in religion among masses. जैसे कि he wanted कि जो लोग हैं उनमें religion जो है और जो religious values हैं वो imbibe करना एक बड़ा ही important aspect है. And but when it comes to the state, he says that the state knows no ethics. कि जो state है it knows no ethics, means कि जो state है that is beyond the role of the morality and the religion, but still morality and the religion is important in order to control the masses at large. जो हमने अभी बात किया morality and religion के ऊपर, उसी के लाइंस के ऊपर, सेम लाइंस के ऊपर we have Machiavelli's views on ethics and politics, जो कि लगभग सिमिलर ही है, बट आई एक्चुअली वांट कि आपको थोड़ा सा और एलेबोरेटली बताया जाए. तो फर्स्ट पहली बात तो ये है कि ही इज द फर्स्ट थ्योरिस्ट टू डाइवोर्स पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, कि ये एक पहला थिंकर है जिसने पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग किया. बिसाइड्स, इसके अलावा स्टेट पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ. मैकियावेली एक ऐसा थिंकर है जो ये बोलने की कोशिश करता है कि जो स्टेट पावर है वो अपने आप में ही एक एंड है. मींस एंड का मतलब वो ऑब्जेक्टिव है. और इसके साथ साथ एक इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थॉट है जिसमें मैकियावेली ये बोलने की कोशिश करता है कि एंड जस्टिफाइज मींस. जैसे ये लिखा है एंड जस्टिफाइज मींस, कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे मींस क्या होंगे. मींस अगर हमने किसी रास्ते किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और कोई ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. मींस जो भी हो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मैकियावेली. इसके अलावा he tried to separate ethics from politics and gives great importance to statesmanship. उसने, जैसे हमने पहले भी काफी बात किया इसके ऊपर, कि he tried to separate ethics from the politics, कि जो politics है that knows no ethical laws, no morality, and उसने किसको importance दिया? statesmanship को. और और अगर हम लॉर्ड एक्टन्स के वर्ड के ऊपर जाए, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है about the Machiavelli, he says that we find everybody using Machiavelli and still denouncing him. कि हम देखते हैं कि हर एक जो पॉलिटिशियन बोलो या एक इंसान बोलो, he is using Machiavelli, उसको यूज करता है, बट दे आर डिनाउंसिंग हिम. व्हाई? बिकॉज उसका जो ह्यूमन नेचर को लेके या एथिक्स या पॉलिटिक्स को लेके जो व्यू है उसको नेगेटिव माना जाता है. और व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक एट लार्ज दे ट्राई टू डिनाउंस हिम कि वो सही नहीं है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेबिलिटी दे आर यूजिंग इट. दैट्स वेयर द मैकियावेली इज एन इंटरेस्टिंग थिंकर. एथिक्स एंड एथिक्स, मोरालिटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक के बाद मैकियावेली के का जो किताब है द प्रिंस, दैट ही रोट इन 1532, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उस बुक में उसने क्या बोलने की कोशिश किया है. बेसिकली जो भी मैकियावेली का थॉट है, मैकियावेली के जो भी व्यूज है, वो जो ये किताब है द प्रिंस, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और जो भी हम आज पढ़ रहे हैं या मैकियावेली के ऊपर पढ़ रहे हैं, मोर और लेस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बुक ओनली. और इसमें हम कुछ शॉर्ट में कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस बुक में इसने क्या किया है. फर्स्ट, दिस बुक इज बेसिकली इज ए मेमोरेंडम ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि एक जो गवर्नमेंट है, हाउ ए गवर्नमेंट विल बी रन, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन ए गवर्नमेंट. और अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स की या एस्पेक्ट्स की बात करें, ये एक्चुअली में इट्स प्रैग्मेटिक इन कैरेक्टर, कि उसका जो व्यू है इज ट्राइंग टू गिव ए वेरी प्रैक्टिकल आउटलुक. एंड इस बुक में ही एक्चुअली ट्राइज टू गिव सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट फॉर रूलर्स, कि रूलर्स को किन किन चीजों की जरूरत है
what a ruler are supposed to do, what they are not supposed to do. That's what is written in the prince. Besides this, prince needs to secure and maintain power. जब हम प्रिंस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, उसने पावर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और इसने कहा कि जो प्रिंस है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो उसका जो पावर है उसको सिक्योर करना और उसको मेंटेन करना। इवन की बहुत सारे इवन की जो मैकियावेली है इज ट्राई टू से दैट ए रूलर आइदर ही एक्सपेंड्स और पेरिशेस, मीन्स ये उसके कुछ सुझाव हैं एक प्रिंस के लिए। बिसाइड्स वो ये बोलता है कि ए प्रिंस इज बेटर इफ ही इज फियर्ड देन लव्ड। जैसे इसने लिखा है बेटर ए प्रिंस टू वाइडली फियर्ड देन लव्ड, मीन कि जो प्रिंस है उसका डर ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग उससे चाहें, लोग उससे प्यार करें, वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसका डर ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स वेयर, और ये ही एक ऐसी जगह है जहां पे ही ब्रॉट a difference between the political realism and the idealism, जो कि you can say that he tried to bring a practical politics to the and he tried to give a practical suggestions to the prince. Besides इसने ये भी बोला है to use force to eliminate political rivals and resistant population, कि जो भी प्रिंस के लिए चैलेंज हो, चाहे वो लोग हों या कोई अपोजिशन के मेंबर्स हों या जो पावर को चैलेंज कर रहे हो, सो जो प्रिंस है कैन यूज द फोर्स टू एलिमिनेट द पॉलिटिकल राइवल्स एंड द रेजिस्टेंट पॉपुलेशन। एंड बिसाइड्स दिस उसने बोला कि जो प्रिंस है वो फ्रॉड ओके और डिसीट का इस्तेमाल कर सकता है अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। दिस इज व्हाट ए प्रिंस इज बीइंग or a ruler is being suggested by the Machiavelli. Okay, after studying about the topic and after trying to understand कि Machiavelli ने प्रिंस में क्या बोला है, now we will try to understand his theory of state and its preservation. Okay, जहाँ तक state की बात है, I think even in political science, state is a very important concept because when we say what is political science, we say that it some thinkers like they have said that it begins and ends with the state. So when it comes to Machiavelli ने state के जो उसके views हैं उसको बहुत ज़्यादा importance दिया गया है, और here we will try to understand his theory of state and its preservation. First, he says that the state it gives the highest connotation to the state and the subjects must submit to state, कि उसने state को एक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसके अलावा इसने ये बोला है कि जो लोग हैं, जो subjects हैं, they must submit to state. Okay, submit to state का मतलब कि they must follow and they must agree to what the state is saying. Besides, he says that the state needs to keep a check on the selfish interests of subjects. यहाँ पे क्या कहने की बोल रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट्स जो है वो अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जो स्टेट का इंटरेस्ट है अगर वो उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो देन द स्टेट नीड्स टू कीप ए चेक ऑन दोज इंटरेस्ट। ओके, बिसाइड्स दिस जो मैकियावेली है ही हैज फेवर्ड मोनार्की। मोनार्की मींस वन मैन रूल। Okay, we can that's why we talk he has given lots of advices to the prince also, और उसने ये बोला है कि जो one man rule है that is actually better than the few men rulers, जिसको उसने बोला है that's why he was against the aristocracy. Okay, इसके अलावा he favored a territorial and sovereign state, और जहां तक ये बात है territorial and sovereign state कि जो कॉन्सेप्ट था सोवरेनिटी का भी okay, उसमें भी जो मैकियावेली है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है टू ब्रिंग फोर्थ द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड ही हैज पुट फॉरवर्ड द सॉवरेन स्टेट। क्योंकि अगर आपने सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट भी पढ़ो तो इट केम आई थिंक अराउंड इन द 17th and the 18th century, and he was around there in the 14th and the 15th century. So he has basically talked about the sovereign state. Okay, इसके अलावा
जैसे हमने पहले भी बात किया है अबाउट द स्टेट, ही वांट्स द एक्यूटल ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द चर्च, कि वो चर्च और पॉलिटिक्स को अलग करना चाहता था, और दैट्स व्हाई इन दैट वे ही वांटेड कि जो चर्च है उसका स्टेट की जो फंक्शनिंग है उसमें कम से कम रोल हो, और हो ही ना रोल उसका। बिसाइड्स ही वाज ए एक्सपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पावर पॉलिटिक्स। आई थिंक जब से हम इसकी बात कर रहे हैं मैकियावेली की, मोर और लेस कहीं ना कहीं जो पावर एलिमेंट है वो आ ही जाता है, एंड दैट्स वेयर he is a exponent of the principle of power politics. Besides, he propounded the theory of aggrandizement. Okay, ये theory है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया, but it basically is the theory of aggrandizement. That means state either expands or perishes. So Machiavelli he wants to say that कि या तो state expand करेगा या perish करेगा. Okay, that's where his views are more of a realistic, from a very realistic perspective, and these are the ideas of Machiavelli. Or I think this was the last topic that we have to talk about. I have to talk about Machiavelli. और अगर हम इसको एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करें मैकियावेली को, तो मैकियावेली के जो थॉट्स हैं, चाहे हम ह्यूमन नेचर को लेके दें, चाहे वो स्टेट को लेके देखें या मोरालिटी को लेके देखें, तो his thoughts from an idealist perspective we can see lots of criticism. Means from a idealist perspective we can say that his ideas are very negative. He has a nihilistic perspective to look at the humans. He have a negative view about looking at the human, and even when it comes to the state also, he is favoring monarchy, and that is somewhere against the idea of democracy. Besides, he is giving importance to violence, to deceit, to forgery, to the rulers. और उसने रूलर को इतना ज्यादा पावर दिया है कि मीन्स रूलर itself somewhere you can say that the law and the ruler become synonymous. और जो कि अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें, this is something I think we not acceptable for all of us. So this is we can say that these are the some of the limitations of Machiavelli. Having talked about the limitations of the Machiavelli, there is no doubt about what even the Lord Acton has said, that whatever we say, wherever we say that Machiavelli is doing something, this is wrong, this is not acceptable, but when it comes to the practical politics, when it comes to the actual functioning of the human beings, they are following the Machiavellian thoughts more than, or we can say that they are following the realist aspects more than the idealist philosophy. Thank you.